નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। શરૂઆત સુરતથી કરીએ તો સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો છે। પોલીસે 32 લાખ ચોરી કરનારને ઝડપી પાડ્યો છે। પોલીસે આરોપી પાસેથી 25.50 લાખ રિકવર કર્યા છે। ઉધના પોલીસની હદમાં આવ્યા છે 5 આરોપી। મની ટ્રાન્સફરનું કામ કરનાર યુવકે આપી હતી ટીપ। 5 આરોપીઓએ મળીને કારમાંથી કરી હતી ચોરી। પોલીસે 32 લાખ ચોરી કરનારને ઝડપી પાડ્યો છે। પોલીસે આરોપી પાસેથી 25.50 લાખ રિકવર કર્યા છે। ઉધના પોલીસની હદમાં આવ્યા છે 5 આરોપી। મની ટ્રાન્સફરનું કામ કરનાર યુવકે આપી હતી ટીપ। 5 આરોપીઓએ મળીને કારમાંથી કરી હતી ચોરી। થોડા દિવસ પહેલાં ઉધનાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ચોરીનો બનાવ બન્યો હતો। આ ઘટનામાં 32.5 લાખ રૂપિયાની ચોરી થઈ હતી। આ ચોરીમાં એક વ્હીકલમાંથી 4 વ્હીલમાંથી જ્યારે એના ચાલક હાજર ન હતા ત્યારે તેમાંથી બેગ લઈ અને ચોરી કરવામાં આવી હતી। શરૂઆતમાં આમાં 2 વ્યક્તિ સામેલ હોવાનું પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું। પોલીસે આ બંને વ્યક્તિઓની આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એની તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન આ ઉપરાંત અમારા જે ખાનગી બાતમીદારો હોય છે, જે હ્યુમન રિસોર્સ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે, એના આધારે અમે તપાસ ગતિમાન કરી હતી, જેમાં છેવટે અમને સફળતા મળી હતી અને એ મુજબ અમને કન્ફર્મ થયું હતું કે આ ઘટનામાં ચોરી કરનાર 2 વ્યક્તિઓ છે, મિતેશ ઉર્ફે મિતલો રવિન્દ્ર ગોસ્વામી અને નયન ઉર્ફે લાલો કિરણ ભારતી। આ 2 વ્યક્તિઓ આ ઘટનામાં મુખ્ય રીતના સામેલ છે। ત્યારે પોલીસે આ બેની વોચ ગોઠવી હતી। વોચ દરમિયાન પોલીસે જ્યારે આ બંને મળી આવ્યા ત્યારે પોલીસે વધુ એની પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું કે આ ઘટનામાં ફક્ત આ 2 જણા નથી, પરંતુ અન્ય 3 જણા પણ સામેલ છે। એ રીતના કુલ 5 જણા આ ઘટનામાં સામેલ છે, જેમાં અન્ય 2 જણા છે એ ટીપર તરીકે પોતાનો રોલ નિભાવ્યો હતો, કે જેમાં એકનું નામ આકાશ ગોસ્વામી છે અને એકનું નામ જગદીશ ભેરુસિંહ રાજપુરોહિત છે। આ બંને જણા ટીપર તરીકે રોલ નિભાવ્યો હતો અને પછી જે આરોપીઓ છે જેણે ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો એ અને આમાંથી એક ટીપર, એ બંને ત્રણેય થઈને રેકી પણ કરી હતી। 3-4 દિવસ તેઓએ આને જે ભોગ બનનાર છે એની રેકી કરી હતી, કે કઈ રીતના એ પોતાનો માલ સામાન લઈ જાય છે, કઈ રીતના મૂવમેન્ટ હોય છે, કયો રસ્તો અપનાવે છે, આ બધી બાબતનો એ કોઈ રેકી કરી અને છેવટે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો। ત્યારબાદ એ લોકોને જે પૈસા ભેગા થયા હતા એ પૈસા લઈને એ લોકો બારડોલી ગયા હતા। બારડોલીમાં એક મંદિર પાસે રોકાયા હતા। આ મંદિર પાસે જઈને અને પછી ત્યાં પૈસાની વહેંચણી કરી લીધી હતી અને ત્યાંથી તેઓ 2 જણા જે મુખ્ય આરોપી હતો એ લોકો ટ્રેનમાં થઈને જતા રહ્યા હતા। આ પ્રકારની અત્યારે પોલીસને માહિતી મળી છે। પોલીસે જ્યારે આ બંને આરોપીઓ અહીંયા પોતાના ઘર બાજુ આવનાર હતા એ મુજબની ઇન્ફોર્મેશન મળી ત્યારે તેઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। આરોપી ક્યાંથી ઝડપી પાડ્યા? પોલીસે બંને આરોપીઓ જ્યારે પોતાના ઘરે જતા હતા ત્યારે સાંઈનગર પાસેથી અમે પકડી પાડ્યા હતા। આ ઉપરાંત બીજા 2 આરોપીઓને પણ અમે ઝડપી પાડ્યા છે અને એના ઉપરાંત જે ત્રીજો આરોપી છે મહેશ પાટીલ, કે જેણે આ પૈસા લઈ જઈ અને અન્ય જગ્યાએ રખાવી દીધા હતા, એની પણ અમે ધરપકડ અત્યારે કરનાર છીએ। અત્યાર સુધી પોલીસને કુલ 26 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ રિકવર થયો છે, જેમાં 32.5 લાખમાંથી 26,60,000નો મુદ્દામાલ રિકવર થયો છે, રોકડ રકમ। આ ઉપરાંત 5 લાખની એક વ્હીકલ છે, 4 વ્હીલ ગાડી સ્વિફ્ટ, ગુનામાં વપરાશ થનાર CBZ મોટરસાઇકલ, આ ઉપરાંત એક FZ મોટરસાઇકલ છે એ પણ મળી આવ્યું છે અને મોબાઈલ મળી અને લગભગ 33 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ પોલીસે રિકવર કરેલ છે। એક જ આરોપી 2 વખત ચોરીનો અંજામ આપ્યો છે અને એક જ ફરિયાદી છે, તો એનામાં કેવી રીતના ભૂમિકા આવી છે? આમાં જે ફરિયાદી છે એના ગયા વર્ષે પણ ફરિયાદીના ફાધર સાથે આ જ પ્રકારની ઘટના બની હતી, કે જેમાં એના હાથમાંથી સ્નેચિંગ કરી અને બેગ તફડાવી લેવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રકારની ઘટના બાદ જે આરોપીઓ છે એ લોકો આને થોડાક પરિચિત હતા ફરિયાદીથી
અને ફરિયાદી પણ ડેઇલી આ પ્રકારનું કલેક્શન લઈ અને મૂવમેન્ટ કરે છે એ પ્રકારનું પેલી માહિતી જગદીશે આકાશને આપી હતી કે ભાઈ આ પ્રકારનો એક વ્યક્તિ છે કે જે આવી રીતના મૂવમેન્ટ કરે છે અને અગાઉ પણ આ રીતના ભોગ બનેલો હતો, જેથી તેઓ માટે એક સોફ્ટ ટાર્ગેટ તરીકે તેઓ આને ચૂઝ કર્યો હતો. અને ત્યારબાદ જગદીશે પોતાના 2 મિત્રો લાલુ અને મિતલો આ બંનેને આ ટાસ્કિંગ આપ્યું હતું. આ ટાસ્કિંગ આપ્યા બાદ 3 જણાએ આની રેકી કરી હતી અને શરૂઆતમાં એ લોકોનું આયોજન પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ ઘટનાને અંજામ આપવાનું હતું, પરંતુ કોઈને કોઈ કારણસર તેઓ ત્યાંથી કામ કરી ન શક્યા હતા, એટલે એ લોકો વધુ એનો પીછો કરતાં ઉધના વિસ્તારમાં આવી ગયા હતા. ઉધનામાં એ લોકોએ જ્યારે પીછો કર્યો ત્યારે જે ફરિયાદી છે એ પોતાનું વ્હીકલ છે એ અનલોક કન્ડિશનમાં મૂકી અને શોપમાં જતો રહ્યો હતો, જેથી તેઓને ચોરી કરવી ખૂબ જ આસાન થઈ ગયું હતું. અગાઉ એમનું આયોજન સ્નેચિંગ કરવાનું હોય એવું અત્યારે પોલીસને માહિતી છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ ઘટના સ્થળે પહોંચે છે ત્યારે તેઓને એકદમ અનલોક કન્ડિશનમાં જે વ્હીકલ મળે છે એટલે ખૂબ જ આસાનીથી તેઓને એ બેગ મળી જાય છે અને ત્યાંથી તેઓ ચોરી કરીને નીકળી જાય છે. લોક કરવાનો ઉદ્દેશ શું હતો લોકોનો? અત્યારે જે પૈસાને શું કરવા માટે, પૈસા શેના માટે લૂંટ કરવા હતા? એ લોકો જે આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો એમાં મુખ્ય આયોજન એવું હતું કે દિવાળીનો સમય આવનાર હતો અને એક વ્યવસ્થિત એ લોકોને ટીપ મળી હતી. દિવાળીના સમયમાં પૈસાની ખૂબ જ મોટી પ્રમાણમાં મૂવમેન્ટ હોય તો આટલા મોટા પ્રમાણમાં પૈસા મળી જાય એ પ્રકારનું એ લોકોનું આયોજન હતું. બગદાલા બ્રિજ નજીક આજે સવારે વધુ એક કાર ચાલકે વહેલી સવારે બાઇક સવાર 2 ને અડફેટે લીધા છે અને બાઇકના બંને યુવક મિત્રો સાથે ડુમસ ફરવા નીકળ્યા હતા. અકસ્માત બાદ કાર ચાલક ફરાર થયો છે. અરબાઝ અને અજીમ સહિતના મિત્ર કાપડ માર્કેટમાં મંજૂરી કામ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સવારે 7 વાગ્યાની આ ઘટના છે. અચાનક કાર સામે આવતા બાઇક ચાલક ઘસી ગયો હતો. अरबाज क्या हुआ था? ऐसा हुआ था कि हम लोग जा रहे थे, गाड़ी में चला रहा था और पीछे मेरे पीछे वो बैठेल था। क्या नाम था उसका? और वो अजीम था उसका नाम। आपका नाम क्या? मेरा नाम अरबाज है। कहाँ जा? हम लोग जाए थे वैसू, मोन्टोसा है ना वहाँ पे, तो उसके साइड वाले रोड से हम लोग साइड से जा रहे थे, तो मैं बराबर ही गाड़ी पे था मेरी, मैं सीधा सीधा ही आ रहा था बराबर, तो कार वाला एकदम स्पीड में आ रहा था सामने से, तो मैंने उसको देखा ना, तो मैंने थोड़ा ब्रेक मारा और साइड पे लिया, फोन बजाया तो उसने सीधा ये साइड घुसा दिया। उसने घुसाया तो मैं घबराहट चढ़ गई मुझे, तो मैंने अर्जेंट ब्रेक मार दिया, आगे का और पीछे का दोनों दो साथ में मारा ना, तो सीधा वो घुस गया और मैं सीधा उछल के वो साइड गिरा, तो मेरे पूरे टायर भी टूट गया गाड़ी का और उसकी भी गाड़ी का आया। अभी कहाँ है? वो कार वाला उधर ही खड़ेल था, उसको हमने बोले भी खर्चा बनने का, वो बुढ़ा था वो, ऐसा हुआ। उसका भी टायर वो सब हो गया, एम्बुलेंस बुलाए, कार उधर ही पड़े ले, कार उधर ही है। पुलिस आई थी? पुलिस कोई नहीं, एम्बुलेंस बुलाए थे। વિક્રમ સંવત 2081 ત્યારે નવા વર્ષની ઉજવણી ઉત્સાહભેર રીતે કરાઈ. ત્યારે કેન્દ્ર કેબિનેટ જળશક્તિ મંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે લોકોને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી. કાર્યકર્તા જોડે પણ નવા વર્ષ નિમિત્તે શુભેચ્છાનું આદાન પ્રદાન કર્યું. પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. દિવાળીના દિવસે આપણે દીપ પ્રગટાવીએ છીએ. દીપ અંધકાર દૂર કરે છે અને આજે આપણે આ 4 દીપ પ્રગટાવીએ છીએ. દિવાળી અને નવા વર્ષના આજના પર્વ નિમિત્તે હું આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. નવા વર્ષમાં આપણી તમામ ઈચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ, મહત્વાકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થાય એ ભગવાનને ચરણે પ્રાર્થના પણ કરું છું. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશ જ્યારે પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે એના ફળ આ દેશના તમામ નાગરિકોને, છેવાડાના પગથિયા પર ઉભેલા દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે એના માધ્યમ બનીને આપ જે રીતે કામ કરો છો એના માટે પત્રકાર મિત્રોને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે આપણે એક દીપ પ્રગટાવીએ છીએ અને દીપમાં પ્રગટાવવાના કારણે અંધકાર દૂર થાય છે. આ દીપને કારણે આપણા જીવનમાં રહેલો અંધકાર પણ દૂર થાય એવી પણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું. આપણે એક દીપ દિવાળીના નામે પ્રગટાવીએ, એક દીપ નવા વર્ષના નામે પ્રગટાવીએ અને એક દીપ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જે કલ્પના છે કે
કે 2047 સુધી વિકસિત ભારત બનાવવું છે, એના સંકલ્પ માટે પણ આપણે પ્રગટાવીએ અને એક દીપ આપણે જન સંચય, જન ભાગીદારી અને જન આંદોલનનો જે કલ્પના અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કરી છે એ ગુજરાત મોડલ લઈને જ્યારે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે આપણે સૌ એક દીપ પણ પ્રગટાવીએ ને જળ સંચય, જન ભાગીદારી, જન આંદોલનનો સંકલ્પ કરીને એમાં આપણું પોતાનું યોગદાન પણ આપીએ એવી આ વ્યવસ્થા નિમિત્તે મારી આપ સૌ પાસેથી અપેક્ષા પણ છે. આપ સૌને ફરીથી દિવાળી અને નૂતન વર્ષના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ. આપ સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલ દ્વારા મોટી જાહેરાત દિલ્હીમાં કરવામાં આવી છે. પાણીના ખોટા બિલ જમા કરાવશો નહીં, ફેબ્રુઆરીમાં ફરી આપની સરકાર બનાવશો, હું તમામ બિલને માફ કરાવીશ. 10 વર્ષ પહેલા પણ મારી પહેલી ચૂંટણીમાં લોકો મોંઘી વીજળી અને પાણીના બિલની સમસ્યા લાવતા હતા. લોકો મોંઘા વીજળી અને પાણીના બિલ બતાવતા અને પૂછતા કે આપણે આપણા બાળકોને ભણાવીએ કે આ મોંઘા વીજળી અને પાણીના બિલ ચૂકવીએ. जब मैं जेल गया तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बचा. एलजी चला रहे थे उस टाइम सारा, एलजी दिल्ली सरकार चला रहे थे कई महीनों तक. भाई साहब जब एलजी के पास सारी पावर थी वो आपके लिए कोई अच्छा काम करते? 8 महीने 10 महीने उन्होंने सरकार चलाई, आपके लिए कितने काम कर सकते थे? कोई काम करा एलजी ने अच्छा? कोई काम करा बीजेपी वालों ने अच्छा? एक काम बता दो एलजी ने जो करा हो तुम्हारे 8 महीने के अंदर. काम रोकने का काम करा, कूड़ा फैला दिया चारों तरफ, सड़कें टूटी पड़ी हैं. सड़कें जब मैं बाहर आया हूं, जनता से मिलता हूं, जनता दिखाती है जी सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, बच्चों की नौकरियां ने. अब केजरीवाल बाहर आ गया, चिंता मत करना, सारे काम करा दूंगा तुम्हारे, सारे काम करा दूंगा. सड़कें बननी ठीक हो गई हैं, कूड़ा उठना चालू हो गया है. जहां जहां गंदा पानी आ रहा था मैंने लिस्ट बना ली है, थोड़े दिन के अंदर आपका पानी साफ आना चालू हो जाएगा. जहां जहां गंदा पानी आ रहा है, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहा है वो सारा सीवर साफ करा दूंगा. आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा. दोस्तों, आप ही के लिए जेल गया था मैं. मेरे को इन्होंने जेल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम रोकना चाहते हैं. आपके लिए जान भी देनी पड़ी, जान भी हाजिर है, आपके बेटे की, आपके भाई की जान भी हाजिर है, अगर जान भी देनी पड़ी. बस आपका साथ चाहिए मेरे को. आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है. आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए. ये अपना आशीर्वाद बनाए रखिए. बाकी केजरीवाल बड़ी बड़ी ताकतों से भी लड़ने की हिम्मत रखता है. दोस्तों, भारत माता की. अभी मेरे को पता चला जब मैं जेल गया, मेरे पीछे से इन्होंने बदमाशी करके फिर आपके पानी के खूब बिल भेज दिए. गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो. आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिस जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है. दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना. सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालू हो जाएंगे. जैसे पहले करे थे ऐसे दोबारा पानी के बिल माफ कर दूंगा. याद करो आज से 10 साल पहले जब शीला जी की सरकार थी, रोज भाई साहब, अब तो भूल गए होंगे आप, अब तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुराने दिन याद नहीं होंगे पर मैं याद दिला देता हूं. 8-8 घंटे भाई साहब पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती थी. इन्वर्टर खरीद रखे थे लोगों ने, जनरेटर खरीद रखे थे लोगों ने, हर साल बैटरी बदलवानी पड़ती थी इन्वर्टर की. अब बिजली तो नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल के अंदर. यह आसान काम नहीं था. मैंने और सतिंदर जैन ने गली गली में जाके ट्रांसफार्मर बदलवाए, तार चेंज करवाई. आसान काम नहीं था दिल्ली में 24 घंटे बिजली करना. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शीला जी के टाइम पे 5,500 मेगावाट बिजली की खपत होती, डिमांड थी. आज 8,500 बिजली की डिमांड है.
तब भी दिल्ली में बिजली नहीं जाती, 24 घंटे बिजली है। और उस टाइम 5,500 बिजली की डिमांड होती थी, तब भी बिजली जाया करती थी। इतनी शानदार व्यवस्था करी कैसे? क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा लिखा आदमी चुनने का यही फायदा है। आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। सबसे बड़ी बात, यहां पे कच्ची कॉलोनी में कौन कौन रहता है, जरा हाथ खड़े करो। भाई साहब, जितना काम मैंने कच्ची कॉलोनी वालों के लिए करा है, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। कच्ची कॉलोनियों में मैंने सड़कें बनवा दी। कच्ची कॉलोनियों में सीवर की पाइप, मैं भी आ रहा हूं, कुछ लोग, कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा दी। कितनी सड़कें? 6200 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। अभी कई बाकी हैं गलियां, कई गलियां बाकी हैं, वो भी करवा रहा हूं। 10 साल में इनका जो 75 साल का कूड़ा था सारा साफ नहीं हो सकता। कई गलियां बनवाई हैं, कई गलियां बनानी है। 10,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों में। ये छोटी बात नहीं है। 7,500 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं। जितनी बच गई अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा, जिन जिन की बच गई। कुछ लोग यूं 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 कर रहे हैं। जितनी बच गई वो भी सारे काम करवा दूंगा। लेकिन जितना काम मैंने कच्ची कॉलोनियों के लिए किया है, आज तक भाई साहब किसी ने नहीं करा। स्कूल अच्छे हो गए, नहीं हो गए? खुश हो स्कूलों से? अस्पताल में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, अच्छा इलाज होता है, नहीं होता? अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मैं अभी 3-4 दिन पहले देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे केजरीवाल ने आयुष्मान भारत लागू नहीं करी। उत्तर प्रदेश में भाई साहब आयुष्मान भारत लागू है। उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली में दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाते। अगर इतनी अच्छी योजना है तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए? हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में, जीबी पंत में, एलएनजेपी में जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, आधे से ज्यादा में उत्तर प्रदेश। स्वागत है उनका, हम पूरे देश के लोगों का इलाज कर लेंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन तुम्हारी योजना इतनी अच्छी होती तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता, हरियाणा वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता? यहां पे महिलाएं नहीं है, लेकिन आपके सबके घर में माँ होंगी, बेटी होगी, बहन होगी। बसों में जाती है, टिकट तो नहीं लगती? टिकट तो नहीं लगती? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली में मेरी सरकार बनने के पहले 65 साल में 60 फ्लाईओवर बने और मैंने 9 साल में 38 फ्लाईओवर बना दिए। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बना दिए। हमारे पहले 5,000 बसें थी, आज 7700 बस खरीद दी दिल्ली वालों के लिए। और शानदार बसें हैं, बसों में चढ़े होंगे आप लोग, हैं कि नहीं? एयर कंडीशनड बसें खरीद दी आप लोगों के लिए, शानदार बसें। और बसें फ्री है महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, अब चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में हर आदमी सोचता है किसको वोट दें। जिसने काम करा उसको वोट देना, जिसने काम नहीं करा उसको वोट मत देना। मेरे को काम करना आता है और 10 साल में आपके लिए मैंने काम ही करा है और कुछ नहीं करा, मैंने राजनीति नहीं करी। तो आज मैं जो बात करूंगा आपके सामने काम की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपकी घर की महिलाओं की बात करूंगा, आपकी गलियों की, आपकी बिजली की, आपकी पानी की, आपके राशन की बात करूंगा। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, ये नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी। मेरे को गाली देने नहीं, ना मेरे माँ बाप ने सिखाई गाली देनी, मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को। तो सबसे पहले 10 साल पहले आपने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। आज भी मेरे को याद है, जब मैं 10 साल पहले चुनाव प्रचार में जाता था, जिस भी गली में जाता था, जिस भी घर में जाता था, जिस भी मोहल्ले में जाता था, लोग अपने अपने बिजली के बिल लेके आ जाते थे मेरे पास, अपने अपने पानी के बिल लेके आ जाते थे अपने पास। हजारों रुपए के बिल आया करते थे लोगों के बिजली के।
हजारों रुपए के बिल आते थे पानी के। लोगों के छोटे छोटे घर होते थे, एक पंखा, एक बिजली, एक फ्रिज, एक टीवी और 8,000 रुपए का बिल, 10,000 रुपए का बिल। पानी का लोगों का 5-5, 10-10 हजार रुपए का बिल। लोग कहते थे जी पानी और बिजली का बिल भरें कि बच्चों को पालें। मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी सरकार बना दो, सारे बिल माफ कर दूंगा। करे कि नहीं करे? सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। आज कुलतरन जी ने इस जगह पर दोबारा बुलाया है। मुझे याद है 6-7 साल पहले बुलाया था, मुख्यमंत्री जी भी आए थे, अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ पर चलने की जगह नहीं थी, गाड़ी को बाहर छोड़ना पड़ा था। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, मुझे याद है कि वहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती थी। तो उस दिन हमने कहा था कि भाई इसको बनवा देंगे, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि सब कुछ करवा दिया। केजरीवाल जी देखो जो भी काम कहते हैं वो काम हो जाता है, ये ध्यान रखना। आप पहली बारी एक दो बातें बोलूंगा छोटी छोटी। जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी तो सारे लोग क्या कहते थे, अरविंद जी ने कहा बिजली हाफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे। तो ये कहते पैसा कहां से लाओगे, पैसा कहां से लाओगे। अब क्या कहते हैं, यार इन्होंने तो कर दिया, बिना पैसे के भी कर दिया। अब ये एक ही बात कहते हैं बस कि भाई साहब ये सब कुछ बंद करेंगे हम। बीजेपी वाले यही कहते हैं ना कि भाई हम आपकी दवाई बंद करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, पढ़ाई बंद करेंगे, बिजली बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे, और इसको क्या कहते हैं, फ्री की रेवड़ी बंद करेंगे। अरे भाई साहब तुम आओगे तभी तो बंद करोगे, आने दोगे क्या इनको? कभी मत आने देना इनको। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी कहा है आज तक वो सारा काम पूरा किया है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जो काम लगता है हो नहीं सकता वो भी किया है, और जो आपको लगता है होना चाहिए वो भी किया है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं, वापस आ गए हैं। अब जो जो काम आपको कहे थे सारे पूरे हो रहे हैं, और आगे भी सारे पूरे होंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हर साल पहले मैं इनकम टैक्स में काम करता था, उसके पहले मैं टाटा स्टील में काम करता था। तो जब मैं इंजीनियरिंग का काम करता था, हम भी हर साल विश्वकर्मा पूजा मनाया करते थे कंपनी में। तो मेरे को वो पुराने दिन याद आते हैं, और आपके बीच में मैं आज ये तीसरी या चौथी बार आ रहा हूं। एक बार आया था चुनाव लड़ने के पहले, मेरे ख्याल से 2013 में या 2014 में आया था। 2015 में हमारी सरकार बनी थी, इसी ग्राउंड में आया था, इसी क्षेत्र में, और ये पूरा कच्चा था। और जब मैं आया था उस दिन आप लोगों ने एक मांग रखी थी, आपने कहा था जी ये पूरा पक्का बना देना। पक्का बन गया, जो कहा वो किया। आज मुझे बड़ी बेहद खुशी है, आप लोगों के बीच में मैं फिर से आया हूं। देखो मैं आम आदमी हूं आपकी तरह। 10 साल पहले, 12 साल पहले तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर। ये तो पुराने जन्म में कुछ पुण्य करे होंगे कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान देके पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी मेरे को, उस ताज पे बिठा दिया, उस सिंहासन पे बिठा दिया, मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप लोगों ने। पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, इसलिए ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, खूब पढ़ा लिखा हूं मैं, और देश के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करी है। પીએમ મોદીએ જનતાને જૂઠું પીરસ્યું છે।
પરંતુ જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી યોગ્ય જવાબ મળ્યો તો ટ્વીટ ડિલીટ કરવી પડી। અમારી સરકાર તો તેમની ગેરંટી પૂરી કરી રહી છે અને અમને અમારા વચનો યાદ છે, પણ તમે તમારા વચનો ભૂલી ગયા છો। તો મશરૂમ ખાવાનું બંધ કરો અને બાદામ ખાવાનું શરૂ કરો। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने लगे ट्वीट, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। देश के प्रधानमंत्री, 11वें साल के प्रधानमंत्री, देश सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रख लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती न कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। ये स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद, इस पद का हम सब पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन पता नहीं अब कब तक कर पाएगा। अरे हम तो सोचते थे अपने ट्रोल्स के लीडर हैं। आपके ट्वीट्स देखकर तो ऐसा लगता है आप अपने ट्रोल्स के फॉलोअर हैं। आपके ट्रोल्स आपसे बेहतर ट्वीट कर लेते हैं। आपको तो डिलीट करना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, चौराहों की आप बात करते थे कि मैं जिस चौराहे पे जो चाहे सजा दे देना। चले मत जाइएगा चौराहों पर, वहां जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रह गया। कितने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। મોદી સરકારની આયાત નિકાસ નીતિને કારણે મહારાષ્ટ્રના ડુંગળી, કપાસ અને સોયાબીનના ખેડૂતોનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે। સ્થિતિ એવી છે કે ખેડૂતોની આત્મહત્યાના મામલામાં મહારાષ્ટ્ર નંબર 1 છે। તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી મોદી સરકારની છે। ખેતીથી લઈને ખેડૂતોના મનમાં અસલામતીની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે। हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक हमारे ओनियन, कॉटन एंड सोयाबीन फार्मर्स का जिंदगी खराब हो गया है। The farmers policies of the BJP government completely destroyed the farmers in Maharashtra. सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के वजह से महाराष्ट्र की फार्मर्स ने सबसे ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है। इसके पूर्ण जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने जो अपने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो बनाया है, उसके तहत आज फार्मर्स को आत्महत्या करना पड़ते हैं और उनको आगे नहीं जा पाएगा।
कॉटन महाराष्ट्र इंडिया आप जानते हैं कि महाराष्ट्र इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाले प्रदेश है। 80.25 lakhs bales in 2022-23. Maharashtra has over 40 lakhs cotton farmers. ये किसानों को जो इनसिक्योरिटी फील हो रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी की वजह से हमारे फार्मर्स की सुइसाइड होते जा रहे हैं। फार्मर्स फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं। In April 2024, high local cotton price led to the booking of 22 lakhs bales from South Africa, Brazil, scheduled to arrive in January 2025. इन राज्यों से, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से इंपोर्ट के वजह से हमारे कॉटन फार्मर को पूरी तरह कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा 11 लाख अनसोल्ड बेल्स अभी भी सीसीआई के पास है, वो भी मार्केट में आने वाले हैं। सो इसके वजह से क्या होगा, समस्या और बढ़ेगा। आप जानते हैं कि कॉटन प्राइस in Maharashtra is 6,500 to 6,600 per क्विंटल। ये तो हमारे जो एमएसपी डिक्लेयर किया है वो एमएसपी के बड़े नीचे बिलो है। एमएसपी आप जानते हैं कि 7,122। इसके वजह से क्या हो गया, फार्मर्स अपने जो भी कॉटन को होल्ड करने के लिए वो लोग तैयार रहते, लेकिन इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार को कोई कदम नहीं उठाया है। आने वाले दिनों में और कॉटन फार्मर्स को बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी किया है उसके वजह से ये सब हो रहे हैं। ओनियन फार्मर्स के भी बात यही है। महाराष्ट्र के जो ओनियन फार्मर्स बहुत सारे समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत। प्रधानमंत्री ने 2023 में एक्सपोर्ट बैन किया था बोलते हैं, लेकिन while India allowed 2,000 metric ton of white onion exports from गुजरात। देखिए, प्रधानमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन विल बी बैंड, लेकिन एनडीए ने क्या किया, गुजरात से 2,000 मेट्रिक टन ऑफ ओनियन इधर लाया। इसके वजह से ओनियन फार्मर्स को भी बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ता है। नाउ आफ्टर द लिफ्टिंग ऑफ द बैन, NDA betrayed Maharashtra's onion farmers by setting a minimum price of rupees 550 per ton and imposing 40% of excise duty, effectively pushing buyers away from their produce in the international market. और महायुति गवर्नमेंट ने भी ओनियन फार्मर्स को मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने 2,000 पर क्विंटल सब्सिडी अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक कोई किसी को भी सब्सिडी नहीं मिला है। फार्मर्स ने 500 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी मांगा था, इन्होंने 200 रुपीज पर क्विंटल सब्सिडी देने के लिए वादा किया था। अभी भी इसके बारे में पूछते तो गवर्नमेंट खामोश बैठे हैं, सब्सिडी अभी तक फार्मर्स को नहीं मिला है। While 40% of the import duty of Karnataka onion farmers were removed, कर्नाटका के सरकार ने 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी था वो रिमूव कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के पॉलिसी के वजह से आज तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। केवल 20% की कम करने का कोशिश हो रहे हैं। और
रिडक्शन प्रोवाइड नो रिलीफ टू द फार्मर्स। जो फार्मर्स का भी जो रिलीफ देना था, द प्राइसेस सोरिंग 800 per ton, there will be no buyers for the Maharashtra onion in the international market. इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ये लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एंड इसके वजह से क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो उनके प्रोडक्ट्स को, ओनियन को बेच नहीं सकते हैं और हर तरह की कठिनाई को सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द एनडीए एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। आप जानते हैं कि ये लोग डबल इंजन सरकार के बारे में बोल रहे हैं। एनडीए के जो डबल इंजन सरकार एंटी फार्मर है, एंटी फार्मर and the import export policy is totally finishing the agrarian sector in Maharashtra. तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करने के लिए कोई कदम केंद्रीय सरकार नहीं उठा रही है। મોદીજીએ કહ્યું તે કરી બતાવ્યું છે। ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદી શું બોલ્યા સાંભળો। કોંગ્રેસ ક્યારે પણ તેનું વચન પૂરું કરી શકતી નથી। જ્યારે પણ તે સત્તામાં આવે છે ત્યારે તે રાજ્ય અને દેશ માટે આર્થિક પડકાર લઈને આવે છે। જે રાજ્યમાં તેમની કોંગ્રેસ સરકાર છે ત્યાંની આર્થિક સ્થિતિ કથળતી જ જઈ રહી છે। मोदी जी की गारंटी एक मजाक तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, कांग्रेस के तथाकथित मजाक का वास्तविक मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा जनधन अकाउंट, आज 54 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट है और उस समय लोग कहते थे, बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कहते थे पैसा कहां से आएगा। आज जनधन अकाउंट में 2 लाख करोड़ पूरा करके दिखाया। बताइए मजाक कौन बना रहा है, आप या अपना? मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत 2014 में। आज किसी से यह छुपा हुआ नहीं है कि 2014 से पहले जितनी आसानी से लोग हाथ में कोई भी रैपर या कोई चीज हो छोड़ दिया करते थे, आज मानसिकता और विचार में बदलाव आया है। मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज नवजात शिशुओं के सेक्स रेशियो में भारी सुधार आया है और राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य जहां यह सबसे अधिक स्क्यूड था वहां भी भारी सुधार हुआ। और पिछला वर्ष यह था जबकि अनेक राज्यों में नए नवजात शिशुओं में कुछ राज्यों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी। यह बदलाव करके दिखाया है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, संवैधानिक दर्जा दे के दिखाया है। दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स मोदी जी के आने से पहले नहीं सुना होगा, उसे करके दिखाया है। महिलाओं के हित में जो कहा था वो पूरा करके दिखाया है, चाहे सबसे अधिक महिला मंत्री हो अथवा जो स्टेप्स उठाए गए। इंडियन डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के फाइटिंग फोर्स में पहली बार महिलाओं को कमीशन देकर दिखाया है। ओआरओपी कहा था वो करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, धारा 370 कहा था वो करके दिखाया है। भव्य श्री राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे हमने सदैव कहा था और मार्ग प्रशस्त करके दिखाया है। मगर ये उसके बाद जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रॉमिस वहां से शुरू करिए। देश का विभाजन नहीं होगा, हो गया। कश्मीर हम वापस ले लेंगे, नहीं ले पाए। 35A और 370 अस्थाई है, नहीं कर पाए। इसके बाद गरीबी हटाओ 1970 और 2013 में कह रहे थे कि नहीं वो फूड फॉर सिक्योरिटी देनी है, नहीं कर पाए। जाके देखिएगा राहुल गांधी जी का एक ये भी बयान है कि आतंकवाद को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है सब जगह रहते हुए। आपने जो कहा वो भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई। और जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे।
आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो, कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है, और फिर भी कहते हैं कि हमने सारा कर दिया है। कर्नाटक में तो आपने यह भी देखा कि वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इनके शासनकाल में महाराष्ट्र था और हमारे शासन में कर्नाटक था, तो इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 हो गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। દ્વારકા વિધાનસભામાં નિવૃત્ત આર્મી ઓફિસર હમણાં ઘરે આવ્યા છે। આખા વિસ્તારમાં મહિનાઓથી ગંદુ દુર્ગંધ મારતું પાણી આવી રહ્યું છે। દિવાળી પર સીએમ આતિશીએ કોકા કોલાને તેના ઘરમાં નળમાંથી સીધું સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યું છે। હજારો પરિવારની દિવાળી બરબાદ થઈ ગઈ છે। अरे बाप रे, ओए होए, अरे हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, बंद कर दे। बस कर दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कोका कोला, ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। दिवाली पे लोगों को भेंट। आर्मी ऑफिसर है आप? आर्मी ऑफिसर रहे? आप आर्मी ऑफिसर थे जी? आर्मी में थे। ये हर घर में, और एक दो घर और तक चलो बेटा। उसको यादव जी को बोल दिया, सिमी यादव जी को बोल दिया, विनय मिश्र जी को बोल दिया। विधायक कुछ नहीं करता। कुछ नहीं मैडम, ये पानी दिखा रहे हैं ऐसे जैसे आप जाए, बुरा नहीं मानना। अब हम हो गए, किसी ने करना ही नहीं। 2-3 यहाँ चमचे हैं उनके, वो चूते हमको बनाते हैं, बुरा हम बनते हैं जो आगे बोलता है। 2 दिन इनके खास है यहाँ। ये पानी मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगी और ये पानी मुख्यमंत्री या तो पिए या उसमें नहाए। उनको अपने पाप इसी पानी से धोने पड़ेंगे। ये सैंपल जांच 6 महीने मार्च 2010 से नहीं आ रही यही चीज आती है। अब इसको सूंघने से आदमी बीमार पड़ जाएगा। यही कभी कौन नहीं पाते। एकदम नाली का पानी। वहाँ जाओ करना दो तो सुनवाई नहीं है उनकी, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर भी। बस सुनते हैं, हाँ कर देंगे पर आपने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे तो चेले भेज देते हैं। खुद इनके घर में वाटर सैनिटेशन सप्लाई 15 करोड़ के लगेंगे और जनता के लिए ये काला पानी नल के द्वारा ये भेजते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। लोगों को नर्क में मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आज गोवर्धन की पूजा है, दिवाली होके चुकी है, इनकी दिवाली खुद मनेगी और लोगों की दिवाली ऐसे मनेगी। हद है बेशर्मी की। ना सड़कें बनी है, कूड़ा पड़ा है चारों ओर, और ये देखो ये पानी भेजते हैं ये। और यहाँ का जो विधायक है वो दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन है, उसके बावजूद ये हाल है। जमुना की तरफ उसमें वो भी आ रहे हैं, सड़ा हुआ पीला पानी आ रहा है। ये पीने लायक भी, नहाने लायक भी नहीं है। इतना गंदा पानी बताओ कितना, हद हो गई बिल्कुल। શુક્રવારે રાજધાની દિલ્હીમાં કાલિંદી કુંજ વિસ્તારમાં યમુના નદીમાં ફરી એકવાર ઝેરી સફેદ ફીણ તરતું જોવા મળ્યું છે। તમામ સરકારી પ્રયાસોની નિષ્ફળતા અને છઠ પહેલા યમુના નદીમાં વધતા પ્રદૂષણને લઈ લોકોની ચિંતા વધી છે।
લોરેન્સ તમે કોને મારી નાખો છો અને તમે શું કરો છો તે તમારી જવાબદારી છે. બિહારના પૂર્ણિયાના સાંસદ પપ્પू યાદવે શું જણાવ્યું સાંભળો. मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व. कर्मी सेना के अध्यक्ष को जब उन्होंने मारा था तब हम सदन में उठाए थे. हमें जो कहना था, मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता. भिंडरवाला के इतिहास को याद करिए. जब देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था और देश टूटने लगा था. इस तरह कश्मीर में भी जब हमारे कुछ लोग अपने को देश से ऊपर समझने लगे थे तो हमारे हिस्से टूटने लगे थे. और आज मणिपुर, नागालैंड में कुछ लोग हमारे कंट्री के संविधान से अपने को ऊपर समझने लगे तो आज देश अलग हो चुका है. मणिपुर, नागालैंड बिल्कुल हमारे कंट्री से बिल्कुल दूर जा चुके. जो लोग हमें गाली देते हैं वो गाली इस देश के पीएम, सीएम और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करते कि मणिपुर क्या हमारे देश में है या नहीं. एक दिन में 100 लड़कियों का बलात्कार 10